एक विजनरी बनने की कहानी। एलोन मस्क के शुरुआती साल। एलोन मस्क एक ऐसा नाम जो इनोवेशन और फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग का पर्याय बन गया है। उनकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी, जिसने उन्हें टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बनने का रास्ता दिखाया। एलोन मस्क का सफर वाकई असाधारण है। टेक्नोलॉजी के शुरुआती आकर्षण से लेकर उनके ग्राउंड ब्रेकिंग वेंचर्स तक, मस्क की कहानी विजन और परसिवियरेंस की पावर का प्रमाण है। 1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्मे, उनके बचपन ने ही उनके फ्यूचर टेक टाइटन बनने के संकेत दे दिए थे। एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां एजुकेशन और क्यूरियोसिटी को महत्व दिया जाता था, मस्क को छोटी उम्र से ही अपनी रुचियों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। Elon Reeve Musk, FRS. Itikimas asa Island, but yes. Born June 28, 1971, is a businessman and investor known for his key roles in the space company SpaceX and the automotive company Tesla Inc. Other involvements include ownership of X Corp, the company that operates the social media platform X, formerly known as Twitter, and his role in the founding of The Boring Company, XAI, Neuralink, and OpenAI. He is one of the wealthiest individuals in the world. As of August 2024, Forbes estimates his net worth to be $247 billion. उन्होंने कम उम्र में ही कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई, यहाँ तक कि 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर गेम बेच दिया। यह शुरुआती सफलता उनकी विलक्षण प्रतिभा और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का स्पष्ट संकेत थी। Musk was born in Pretoria to May Haldeman, a model, and Errol Musk, a businessman and engineer. Musk briefly attended the University of Pretoria before immigrating to Canada at the age of 18, acquiring citizenship through his Canadian-born mother. 2 years later, he matriculated at Queen's University at Kingston in Canada. Musk later transferred to the University of Pennsylvania and received bachelor's degrees in economics and physics. He moved to California in 1995 to attend Stanford University, but dropped out after 2 days and, with his brother Kimball, co-founded the online city guide software company Zip2. The startup was acquired by Compaq for $307 million in 1999. That same year, Musk co-founded X.com, a direct bank. X.com merged with Confinity in 2000 to form PayPal. In October 2002, eBay acquired PayPal for $1.5 billion. Using $100 million of the money he made from the sale of PayPal, Musk founded SpaceX, a spaceflight services company, in 2002. In 2004, Musk was an early investor who provided most of the initial financing in the electric vehicle manufacturer Tesla Motors Inc., later Tesla Inc., assuming the position of the company's chairman. He later became the product architect and in 2008, the CEO. In 2006, Musk helped create SolarCity, a solar energy company that was acquired by Tesla in 2016 and became Tesla Energy. In 2013, he proposed a Hyperloop high-speed VAC-train transportation system. In 2015, he co-founded OpenAI, a non-profit artificial intelligence research company. The following year, Musk co-founded Neuralink, a neurotechnology company developing brain-computer interfaces, and The Boring Company, a tunnel construction company. In 2018, the U.S. Securities and Exchange Commission, SEC, sued Musk, alleging that he had falsely announced that he had secured funding for a private takeover of Tesla. To settle the case, Musk stepped down as the chairman of Tesla and paid a $20 million fine. In 2022, he acquired Twitter for $44 billion, merged the company into the newly created X Corp, and rebranded the service as X the following year. In March 2023, Musk founded XAI, an artificial intelligence company. ज्ञान की प्यास ने उन्हें किताबों में डुबो दिया, साइंस फिक्शन में खुद को विसर्जित कर दिया और एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जो टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज से भरा हो। उनकी पसंदीदा किताबों में आइजैक एसिमोव और रॉबर्ट हाइनलाइन की रचनाएं शामिल थीं, जिन्होंने उनकी कल्पना और महत्वाकांक्षा को हवा दी। 17 साल की उम्र में मस्क नए अवसरों और एक नई शुरुआत की तलाश में कनाडा चले गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में जाने से पहले क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की,
जहां उन्होंने अपने स्किल्स को और निखारा और अपने होराइजन्स को विस्तृत किया। उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की, जो उनके डाइवर्स इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट्स को दर्शाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में उनका समय कठोर एकेडमिक परस्यूट्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए टेक्नोलॉजी की क्षमता में बढ़ती दिलचस्पी से भरा था। कुछ ठोस करने की इच्छा से प्रेरित होकर मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना छोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि तेजी से विकसित हो रहे टेक लैंडस्केप ने एकेडेमिया की तुलना में इनोवेशन के लिए अधिक इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज प्रदान किए हैं। वह इंटरनेट की बढ़ती क्षमता से प्रभावित होकर बस 2 दिन में ही पढ़ाई छोड़ दी। 1990 का दशक इंटरनेट स्टार्टअप्स के लिए तेजी से विकास का समय था और मस्क इस डिजिटल रेवोल्यूशन में सबसे आगे रहने के लिए उत्सुक थे। इस फैसले ने उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी और इनोवेशन के उनके अथक प्रयास की शुरुआत को चिह्नित किया। Zip2 और X.com सहित मस्क के शुरुआती वेंचर्स ने टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी जैसी कंपनियों के साथ उनकी बाद की सफलताओं की नींव रखी। जोखिम लेने की उनकी इच्छा और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के उनके अदम्य ड्राइव ने उन्हें कई उद्योगों में एक सच्चा पायनियर बना दिया है। Musk has expressed views that have made him a polarizing figure. He has been criticized for making unscientific and misleading statements, including COVID-19 misinformation, promoting right-wing conspiracy theories, and endorsing an anti-Semitic theory. He later apologized for the latter. His ownership of Twitter has been similarly controversial given the layoffs of large numbers of employees, an increase in hate speech, misinformation, and disinformation posts on the website, and changes to Twitter Blue verification. पहला वेंचर, Zip2 से लेकर पेपैल के साथ ऑनलाइन पेमेंट्स में क्रांति तक। टेक दुनिया में एलोन मस्क का सफर एक बोल्ड विजन और रिलेंटलेस ड्राइव के साथ शुरू हुआ। 1995 में एलोन मस्क ने Zip2 की सह स्थापना की, जो एक ऐसी कंपनी थी जो अखबारों को ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर प्रदान करती थी। यह वह समय था जब इंटरनेट अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और कई लोग इसकी क्षमता को लेकर संशय में थे। यह वेंचर उनके भाई किम्बल मस्क के साथ शुरू किया गया था, जो इंटरनेट की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के उनके विजन का प्रमाण था। उन्होंने अपने इनोवेटिव आइडियाज को जीवंत करने के लिए अथक प्रयास किया, अक्सर अपने ऑफिस में ही सोते थे। Zip2 की सफलता तब चरम पर पहुंची जब 1999 में कॉम्पैक ने $307 मिलियन में इसे खरीद लिया, जिससे मस्क को एंटरप्रेन्योरियल सफलता का पहला स्वाद मिला। इस विंडफॉल ने उन्हें और भी बड़े सपनों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज और कॉन्फिडेंस दिया। Zip2 की बिक्री से बेपरवाह मस्क जल्दी ही अपने अगले वेंचर X.com पर चले गए। उन्होंने ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से लोगों के पैसे के लेन देन के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता देखी। यह ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बाद में कन्फिनिटी के साथ विलय करके पेपैल बन गई, जिसने ऑनलाइन पेमेंट्स में क्रांति ला दी। पेपैल के इनोवेटिव अप्रोच ने लोगों के लिए ऑनलाइन पैसे भेजना और प्राप्त करना आसान और सुरक्षित बना दिया, एक ऐसी अवधारणा जो उस समय ग्राउंड ब्रेकिंग थी। पेपैल के यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म और सिक्योरिटी पर फोकस ने पारंपरिक बैंकिंग विधियों को बाधित कर दिया। इसने यूजर्स को एक सीमलेस एक्सपीरियंस प्रदान किया, जिसने ऑनलाइन शॉपर्स और बिजनेसेस के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल की। ईबे ने 2002 में $1.5 बिलियन में पेपैल का अधिग्रहण कर लिया, जिससे मस्क का टेक विजनरी और सैवी एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थान पक्का हो गया। इस एक्विजिशन ने न केवल मस्क की दूरदर्शिता को मान्यता दी, बल्कि उन्हें स्पेसएक्स और टेस्ला सहित अपने भविष्य के वेंचर्स को फंड करने के लिए पूंजी भी प्रदान की, जो उद्योगों को फिर से परिभाषित करने और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। सितारों तक पहुंचने का सपना, स्पेसएक्स और मंगल ग्रह को कॉलोनाइज करने की महत्वाकांक्षा। अपनी शुरुआती सफलताओं से फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ एलोन मस्क ने वास्तव में एक ऑडेशियस गोल, मंगल ग्रह को कॉलोनाइज करने का लक्ष्य रखा। 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना की, जो एक प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कंपनी है।
मस्क की महत्वाकांक्षा अंतरिक्ष परिवहन लागत को कम करने और अंततः मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण को सक्षम बनाने की थी। स्पेसएक्स को अपने शुरुआती वर्षों में संदेह और कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। हालांकि मस्क का अपने विजन पर अटूट विश्वास और उनकी कंपनी की इंजीनियरिंग क्षमता ने महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जन्म दिया। स्पेसएक्स पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने एक रॉकेट को ऑर्बिट में लॉन्च किया और उसे वापस पृथ्वी पर लौटाया। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो पहले केवल सरकारी एजेंसियों ने ही हासिल की थी। इसने फैल्कन 9 और फैल्कन हेवी रॉकेट भी विकसित किए, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कार्गो और अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने में सक्षम हैं। टेस्ला, एक्सेलरेटिंग द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। 2004 में एलोन मस्क टेस्ला मोटर्स, जिसे अब टेस्ला के नाम से जाना जाता है, में एक इन्वेस्टर और चेयरमैन के रूप में शामिल हुए। वे 2008 में सीईओ बने और कंपनी को सिग्निफिकेंट ग्रोथ और इनोवेशन के दौर से आगे बढ़ाया। टेस्ला के लिए मस्क का विजन उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का उत्पादन करके दुनिया के सस्टेनेबल एनर्जी में परिवर्तन को तेज करना था। टेस्ला का सफर भी चुनौतियों के बिना नहीं रहा है। प्रोडक्शन डिलेज, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वायबिलिटी के बारे में संदेह लगातार बाधाएं थीं। हालांकि टेस्ला ने मॉडल एस, मॉडल एक्स और मॉडल 3 जैसी ग्राउंड ब्रेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करते हुए डटकर मुकाबला किया। इन व्हीकल्स ने इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में लोगों की धारणाओं को तोड़ दिया, यह साबित करते हुए कि वे स्टाइलिश, उच्च प्रदर्शन वाली और व्यावहारिक हो सकती हैं। पृथ्वी के पार और दिमाग में न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी और बियॉन्ड। एलोन मस्क एक ऐसा नाम है जो इनोवेशन और फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग का पर्याय बन गया है। उनके वेंचर्स विभिन्न डोमेन्स में फैले हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाना है। एलोन मस्क की महत्वाकांक्षा अंतरिक्ष अन्वेषण और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से कहीं आगे तक फैली हुई है। जबकि टेस्ला और स्पेसएक्स घरेलू नाम हैं, उनका विजन बहुत कुछ शामिल करता है। वह मानव जीवन को बेहतर बनाने और जटिल समस्याओं को हल करने के तरीकों की तलाश में लगे रहते हैं। 2016 में उन्होंने न्यूरालिंक की सह स्थापना की, जो एक न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस विकसित कर रही है। इस कंपनी का उद्देश्य मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर्स के बीच की खाई को पाटना है, दोनों के बीच एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाना है। न्यूरालिंक का उद्देश्य ऐसे डिवाइसेस बनाना है जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का इलाज कर सकें और अंततः मानव क्षमताओं को बढ़ा सकें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां पैरालिसिस को ठीक किया जा सके या जहां मनुष्य केवल सोचकर ही मशीनों से संवाद कर सकें। यह वह भविष्य है जिसके लिए न्यूरालिंक काम कर रहा है। 2016 में मस्क ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर और टनल कंस्ट्रक्शन कंपनी द बोरिंग कंपनी की भी स्थापना की। यह वेंचर मस्क के ट्रैफिक कंजेस्शन से निराशा और यात्रा करने के लिए एक अधिक कुशल तरीका खोजने की उनकी इच्छा से पैदा हुआ था। ट्रैफिक कंजेस्शन से परेशान होकर मस्क ने यातायात को कम करने और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन को सक्षम करने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स के एक नेटवर्क की कल्पना की। विचार एक ऐसा सबटरेनियन नेटवर्क बनाने का है जो वाहनों को तेज गति से ले जा सके, जिससे यात्रा के समय में काफी कमी आए। जबकि अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, द बोरिंग कंपनी ने कई टनल परियोजनाओं को पूरा कर लिया है और इसका उद्देश्य अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाना है। ये सुरंगें संभावित रूप से कम्यूटिंग और अर्बन प्लानिंग के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल सकती हैं। मस्क ने अन्य वेंचर्स की भी खोज की है, जिसमें ओपन एआई भी शामिल है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी है। ओपन एआई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से मानवता को लाभ हो। यहाँ किए गए शोध से एआई टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। और हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन अवधारणा। हाइपरलूप का उद्देश्य लो प्रेशर ट्यूब्स के माध्यम से 700 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से लोगों और सामानों का परिवहन करना है। यह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में क्रांति ला सकता है, इसे तेज और अधिक कुशल बना सकता है। ये वेंचर्स उनके इनोवेशन के अथक प्रयास और मानवता की कुछ सबसे कठिन चुनौतियों से निपटने के उनके दृढ़ संकल्प को उजागर करते हैं।
चाहे वह बीमारियों का इलाज करना हो, यातायात की समस्याओं का समाधान करना हो या एआई और ट्रांसपोर्टेशन में नए फ्रंटियर्स की खोज करना हो। एलोन मस्क का काम हमें प्रेरित करता रहता है और उन सीमाओं को आगे बढ़ाता है जिन्हें हम संभव मानते हैं।